share the slide with Vishwajit na? So it's 5:30. You can start. Okay. So welcome and good evening. Namaste to all kids, coaches, parents, and table tennis passionates. Today is day 16 of Khelo India e-Pathshala Athletes Coaching and Education Program of Table Tennis, organized by Sports Authority of India and Table Tennis Federation of India jointly, and hosted by Netaji Subhash Eastern Center, Kolkata of Sports Authority of India. Dear kids, today's session is multi-ball, an effective training method. And the resource person for today is Mr. Vikas Rathi. Mr. Vikas has done his undergraduation and post-graduation in physical education, and he is a qualified ITKF level 1, 2, and 3 coached as well. He has qualified a high-level coaching diploma from Sweden, and twice he has governed coaching camps for the national team of Maldives, and he has participated in Thailand Golden Series in 2017 as well. Some promising upcoming medal aspirants from our own country are his trainees, and presently he is associated with Pinnacle Table Tennis Academy and a venture of Sports Authority of India's Halo India Academy as well. Today's our expert will be Ma'am Suman Parikh, and Mr. Bishwajit ji is looking after all the technical and digital setups. Before I hand over the microphone to Mr. Vikas, I again want to remind you all that please don't type anything in the chat box until unless you had been asked to do so. These instructions we had received from Sports Authority of India. There is no necessity to reveal your identity or write your name or raise your hand until unless you had not been asked to do so. So I welcome Mr. Vikas on behalf of Table Tennis Federation of India and Sports Thank you, sir. Thank you. Please go ahead. Thank you, sir. Hello, everyone. Hope everyone is fine and doing well during this time. और सबको होगा आगे देखिए कब हमें जल्दी से खेलने को मिलेगा पहले की तरह नॉर्मल. So there are some players still जिनको भी चांस मिल चुका है प्रैक्टिस स्टार्ट करने का. इवन to our academy we have started our practice with few players, not all players. So today my session is based on multi-ball, an effective training method. Everyone knows about multi-ball, but the thing is, multi-ball is a key point है. उनको करने से हमें क्या benefit होता है? How to do training with multi-ball? There are some key points for coach and as well as for players. So जब हम तो वो पॉइंट पता है हमारे माइंड में है, then we can get a maximum benefit out of this training method multi-ball. Some of these key points, तो प्लेयर को भी फोकस करना चाहिए और कोच को भी मल्टीबॉल करते टाइम, और वो हमारे फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल या मेंटल हमें वो कैसे बेनिफिट दे सकता है मल्टीबॉल करने. So here is, let's start. This multi-ball training method is where we use a lot of number of balls, many balls, to feed the player depending on the what sequence or what training we want to do. So we can train everything with multi-ball. So multi-ball is a training method where player continuously get fed a high repetition of balls, either by coach, by player, or by a ball robot. So
मेरा ये टॉपिक लेने का इसलिए रीजन क्या है, मल्टीपल काफी सारे ऑलमोस्ट सभी प्लेयर या कोचिंग करते हैं, बट जब हमें पता होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसको हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो, वो की पॉइंट क्या है, एंड वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ एनीथिंग। तो मेन मोटिव क्या है कि ज़्यादा बॉल हम कम टाइम में यूज करते हैं, तो हम कैसे अपनी ट्रेनिंग को इनहेंस करें और अपनी टेक्निक को इनहेंस करें, अपने जो ट्रेनिंग है मल्टी बॉल के साथ उससे हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ज़्यादा बॉल मल्टी बॉल में यूज करने का मेन रीजन यही होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट ले सकें ट्रेनिंग से। क्योंकि सिंगल बॉल में हम जब प्रैक्टिस करेंगे, हम वन बॉल प्रैक्टिस करते हैं, तो जब भी बॉल मिस होता है so we need at least 10 to 15 seconds to go and pick the ball and come again on the table to play. Sometimes we play 10 balls in a rally, sometimes we play one ball in a rally, sometimes we play zero. So जब हम और उसके बाद हमें अगेन बॉल पिक करने के लिए जाना होता है, बट मल्टी बॉल इज नॉट लाइक दैट, वी गेट कंटिन्यूअसली फेड with multi ball by our coach or by our practice partner. So there are some importance of multi-ball, why we should do multi-ball in our regular training. So the first is repetition, like hitting more balls in less time. Like जो मैं अभी भी बात कर रहा था कि हम जब हम बॉल प्रैक्टिस करते हैं तो हम बार बार बॉल को पिक करने के लिए जाते हैं, बट वो मल्टी बॉल में नहीं है। मल्टी बॉल में भी हैव many balls like 50, 100, 150, any number of balls which we get continuously fed by our coach. तो जब वो कंटिन्यूसली फिट होता है तो हम कम टाइम में काफी स्ट्रोक हिट कर पाते हैं। तो रिपीटिशन और टेबल टेनिस में किसी भी टेक्निक को लर्न करने के लिए हमें बहुत नंबर ऑफ रिपीटिशन हाई चाहिए, क्योंकि टेबल टेनिस ऑल अबाउट फीलिंग, और फीलिंग डेवलप करने के लिए हम जितने नंबर ऑफ स्ट्रोक रिपीट करेंगे उतना हमारी मसल्स की फीलिंग डेवलप होती है, एंड वी कैन ट्रेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल। तो रिपीटिशन हाई होगा तो हम जल्दी किसी भी तरह की तो टेक्निक को लर्न करने में कैपेबल होंगे कम टाइम। वी कैन लर्न वेरी क्विकली विद मल्टीपल ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ रिपीटिशन। एंड so I can show you a video with one ball and multi-ball training, how we do that. अभी ये जो प्लेयर है यंग प्लेयर, he is in cadet, तो वो जो मेरे साथ सिंगल बॉल खेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने 2 बॉल से सिंगल बॉल प्रैक्टिस किया और वो रैली मिस हुई। It took almost 15 seconds, and now we are doing the same stroke with multi balls for next 15 seconds, but the number of repetition is very high in next 15 seconds. So this is a very good way to train any stroke or any technique. तो जब हम एक चीज को ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको जल्दी से लर्न करते हैं। So this is the way. You can go again. Like now you can see first ball we had 4 number of rallies. The next ball it took almost 10 seconds, and then next 5 seconds to pick the ball. अगले 15 सेकंड में जब हम मल्टी बॉल कर रहे हैं तो सेम स्ट्रोक को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज द की ऑफ मल्टी बॉल। तो हम जिसके वजह से हम जल्दी लर्न कर पाते हैं। तो इसमें अगर बॉल मिस होता है तो भी प्लेयर को वो कंटिन्यूसली बॉल फेड होता रहेगा, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन कंटिन्यू कर सकता है, जो भी उसकी टेक्निक है, जो भी उसको लर्न करना है, he can continue. So this is the main thing with multi-ball training. And the next one important thing is for young players is build technique, because this whole session is for young players, I think so.
तो यंग प्लेयर जो हमारी एज होती है, आई कैन से ऑलमोस्ट 13 to 14 years, we should learn, we should clear all the technical parts of our game, because then we can go for big tournaments and we can plan long. So build technique, जब जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि छोटी एज में जो कोई भी स्किल है वो लर्न करी जा सकती है। उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी, जो छोटा बच्चा होता है ऑलमोस्ट 12 साल तक का, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी डबल होती है क्लियरली, जो एक बड़ी एज का जो भी इंसान होता है उससे। तो हम छोटी एज में मल्टीपल के साथ जब टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं तो वी कैन क्लियर टेक्निकल पार्ट वेरी इजीली, आई नॉट से वेरी इजीली बट वेरी क्विकली। तो बिल्ड टेक्निकल पार्ट के लिए जो डिफरेंट स्ट्रोक्स की हम मल्टीबॉल से प्रैक्टिस, नंबर ऑफ रिपीटिशन, वी कैन प्रैक्टिस ए हाई नंबर ऑफ रिपीटिशन फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रोक विद मल्टीबॉल एट ए वेरी यंग एज, because at a very young age there is no pressure for the tournament and the competition. So वो जो टाइम होता है वो टेक्निकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टेक्निकल पार्ट, टेक्निक को इम्पोर्टेंट इम्प्रूव करने के लिए मल्टीबॉल इज ए वेरी important part of the training. So we can practice with multi-ball to learn every technique at a very young age. We can practice when we are playing at high level or we are in senior category, but then we go for a specific stroke and for match training more. But at a young age we go for technical training more. So multi-ball से जो हाई नंबर ऑफ रिपीटिशन है उससे हम अपनी टेक्निकल पार्ट को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं जल्दी। तो नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस एंड फुटवर्क। टेबल टेनिस, एज यू ऑल नो, इज अ वेरी क्विक एंड फास्ट गेम। तो we should and legs. So और फुटवर्क प्रैक्टिस के लिए भी द सेम थिंग इज, for any footwork training we need a lot of number of repetition with our legs, like every set. There may in and out footwork, lateral footwork, crossover footwork, कोई भी footwork training है, side step footwork, कोई भी step training है, वो हम इस एज में वो हम मल्टीबॉल से ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाती हैं। क्योंकि यंग एज में जो प्लेयर है उसका he or she is not so good with rally. तो तो टेक्निकल पार्ट इतना क्लियर नहीं होता है तो वो इतना रैली नहीं कर पाता। जब तक रैली नहीं होगा तो नंबर ऑफ रिपीटिशन जो फुटवर्क के लिए है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फुटवर्क ट्रेनिंग नहीं अच्छे से हो पाएगा विद वन बॉल। बट विद मल्टी बॉल अगर रैली मिस होता है still player can continue his or her footwork of step. तो मल्टी बॉल ट्रेनिंग से अगर हम फुटवर्क ट्रेनिंग करते हैं तो वो बड़ा I can say it's very beneficial and even with balance. तो अगर बॉल मिस भी होता है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना फुटवर्क, अपना बैलेंस रखना, क्योंकि मल्टी बॉल में कंटिन्यू जो फीड होता है बॉल, अगर प्लेयर मिस भी कर रहा है तो भी उसको अपना फुटवर्क पैटर्न कंटिन्यू करने का चांस मिलता है। इट्स नॉट सिंगल बॉल। तो यंग प्लेयर बहुत ज़्यादा रैली नहीं कर पाते हैं तो वो सिंगल बॉल के साथ मुश्किल हो जाता है। तो मल्टी बॉल इज ए वेरी गुड way of training to train footwork and balance. So I can show you some footwork video also. This footwork with forward and backward movement. अगर ये यंग प्लेयर इस ट्रेन को वन बॉल करेगा तो बहुत जल्दी रैली मिस करने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले उसको हाथ पे फोकस ज्यादा करना है देन पैरों पे, वो दोनों एक साथ करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दिस इज द नेक्स्ट फॉरेन ऑप्शन फ्रॉम द 3 पॉइंट। he can continue if he misses the ball, so he can train his footwork. This is in and out footwork, like short push then foreign topspin. ये ड्रिल यंग प्लेयर के लिए काफी मुश्किल है, शॉर्ट पुश रख के इन एंड आउट फुटवर्क में देन प्ले फॉरेन टॉपस्पिन। तो ये मल्टी बॉल के साथ ट्रेन करना
ज़्यादा बेनिफिशियल हो। मल्टी बॉल के साथ ट्रेन करके जब हम सिंगल बॉल प्रैक्टिस कराएंगे उसके बाद देन प्लेयर कैन गेट कंट्रोल। बट डायरेक्ट ये ड्रिल उसको विदाउट मल्टीपल प्रैक्टिस के अगर कराएंगे तो अगेन बैलेंस इज नॉट सो गुड इन दिस ड्रिल। और इस पे मल्टी बॉल में अगर बैलेंस अच्छा नहीं तो सिंगल बॉल में और भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो फर्स्ट वी नीड टू how to move with legs with multi ball without focusing on rally. मल्टी बॉल में वो बार बार शॉट को स्विच कर रहे हैं बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू। मल्टी बॉल वी कैन हैव a number of repetition. So the next is important of multi ball is precise practice. Means with in a multi ball training session. Vikas, can you Yes, be little louder, Vikas? okay, sir. Okay. In multiple practice, precise practice means when the player who does multiple practice, player does the thing he needs to do. वो सिर्फ अपना स्ट्रेंथ से अपना टेक्निकल करता है विद कोच और विद वन ऑन वन सेशन। बट जब हम सिंगल वन बॉल प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार एक प्लेयर का सीक्वेंस प्लेयर खेलता है देन अपोनेंट खेलता है या प्रैक्टिस पार्ट में खेलता है सीक्वेंस को। टाइम होता है ट्रेनिंग में कि हमें अपना सेशन खेलने को नहीं अपना सीक्वेंस नहीं मिलता है जिससे हमें ज्यादा काम करना है। लाइक इफ यू वांट टू अटैक मोर बट विद वन बॉल प्रैक्टिस वी हैव टू ब्लॉक आल्सो। सो बट मल्टी बॉल में इफ यू वांट टू ट्रेन अटैक वी कैन play whole session with attack. So this is the precise practice for with multi ball we can go for. And so I think these are the important things for young players. They can practice with multi ball. And next one is benefits of multi ball training. What benefits we get by multi ball training? बेनिफिट पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट क्या होगा देन वी कैन फोकस मोर। बट इफ वी आर प्रैक्टिसिंग एमलेस, हमें नहीं पता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देन ये काम को करने के लिए अच्छे से फोकस करना मुश्किल है हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा चाहे बड़ा। फोकस मोर। सो द most important thing with multiple is muscle memory. I don't know how many of you young players know about this muscle memory term, but this is there. You all know brain memory, but there is muscle memory for players. Because muscle memory is something like if you do any action continuously, हमारी muscle action को हमने जिस भी पैटर्न में अपना कोई भी बॉडी पार्ट मूव किया है तो उस मसल पार्ट में वो मेमोरी स्टोर होती है। There are some tissues create this memory. So ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक किसी का वॉकिंग पैटर्न जो है बचपन से वो चेंज करेगा देन ओड लगेगा तो मसल मेमोरी वॉकिंग पैटर्न के लिए सेट होता है। तो इसलिए वो मसल मेमोरी जो वॉकिंग पैटर्न की थी वो हर किसी की अलग अलग है। लाइक अगर हम टेबल टेनिस में बात करें लाइक इफ आई टॉक अबाउट फॉरेन टॉप स्पिन, तो फॉरेन टॉप स्पिन का एक्शन हर किसी का डिफरेंट है। It is because of muscle memory. So with multi ball with a high number of repetition, we generate our muscle memory. Yeah, we get better at our muscle memory to learn any technique. जब हमारी muscle memory टेक्निक लर्न करने का सिंपल सा जो फंडा है वो है फीलिंग। फीलिंग इज मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी जब हम मल्टीपल से हाई नंबर ऑफ रेपिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो मसल मेमोरी हमारी जल्दी बेटर होती है। तो इसकी वजह से वी कैन गेट बेटर क्विकली विद आवर टेक्निक। एंड मसल मेमोरी
की इम्पोर्टेंस क्या है. Muscle memory is something like we get our foreign toxin. If I say foreign toxin, we get our foreign toxin action automatic. ऐसा इसे अगर हम मैच खेल रहे हैं तो हमारे पास अगर जब बॉल हमारे हाथ में आता है, हमारी ओर आता है, तो हम उस टाइम ये नहीं सोच सकते कि फॉरेन टॉक्सिन खेलने के लिए मैं अपने हाथ को कैसे मूव करूं या कैसे मैं अपने लेग्स को बेंड करूं, कैसे मैं अपनी बॉडी को यूज करूं. उस टाइम हमारे पास वो टाइम नहीं होता. उस टाइम हमारे पास सिर्फ टाइम होता है कि मैंने इस बॉल को कहाँ हिट करना है, पॉइंट कैसे लेना है. वी कैन फोकस ओनली ऑन आवर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी. So muscle memory is something to get our actions automatic mode, in a automatic mode. तो उस टाइम हमारा जो फॉरेन टॉक्सिन का एक्शन है वो ऑटोमेटिक मोड पे आता है. हम उस टाइम सोचते नहीं है कि वो हमने फॉरेन टॉक्सिन कैसे खेलना, because we have practiced that foreign toxin action a lot of times in our practice, which जिसकी वजह से and we need that automatic mode in our matches, because अगर हम उस टाइम अपने टेक्निक पे फोकस करेंगे कि कैसे खेलना है, कैसे अपना हाथ को मूव करना है, तो हम जो टेक्निक पे फोकस नहीं कर पाए, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मैच के लिए. तो दिस इज द की टू prepare our muscle memory for every stroke, even for our footwork. There is muscle memory for footwork patterns also. So, next one is consistency and coordination. Consistency is something like it is the key to win the match. How consistent we are with our technique, our actions, our footwork. So without consistency, it's very difficult to win the match, because consistency, the opponent हमारी strategy break करता है, then consistency पे फर्क पड़ता है. But if we are good at our technique, then we are good at our consistency. So this is the most important thing to win a match, to be consistent. And coordination, if we talk about coordination in table tennis, it is like hand, leg and eye coordination. This is like सामने से बॉल आ रहा है तो हमने पहले बॉल को देखा तो किस डायरेक्शन में आ रहा है. Then we use our legs to go to that direction, to go near the ball. Then we decide how to move your hand, how to play the ball with hand. So this is the hand-eye coordination. First काम हमारी आईज का है, बॉल को देखना, बॉल को रीड करना, बॉल में स्पिन क्या है, बॉल की डायरेक्शन क्या है, बॉल की स्पीड क्या है. Then we move our legs. Then we act with our hand. So and this coordination at initial stage, especially for young players, if we give random balls or different spins with one ball practice, so this is then it's very difficult for the young player to manage everything at once, manage everything together. So multi ball में अगर ball miss होता है तो फिर भी coordination की practice continue करा. So we can practice consistency and coordination with multi ball training. We get benefit of this. And next is footwork pattern. Like मैंने अभी जो वीडियो दिखाया footwork patterns के लिए, मैंने वहाँ भी डिस्क्राइब किया कि footwork pattern मल्टी बॉल से हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. बॉल मिस और रैली पे फोकस ना करते हुए हम स्टार्टिंग में अपने फुटवर्क पे फोकस कर सकते हैं. So in multi ball we can focus on everything or every aspect separately. So this is the main benefit with multi ball training. If we want to focus on our hand technique, we can focus on hand. If we want to focus on footwork, we can focus on our legs. But one ball practice में हमें रैली भी मैनेज करना है, लेग पे भी फोकस करना है, हाथ पे भी फोकस करना है. वो इनिशियली स्टेज पे डिफिकल्ट होता है. But I'm not saying कि one ball practice is not good, but multiple practice should be there in your training session. You start with multi ball, then go to play the same sequence with one ball practice. Then you कंपेयर कर सकते हैं आप कि आपको मल्टी बॉल से बेनिफिट क्या हो रहा है वन बॉल प्रैक्टिस में. So you need to do one ball practice also. I'm not saying multi ball is the only thing. And the next one benefit we get out of multi ball is endurance. Endurance is something like going beyond your limit. Like अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो endurance is like जब हमारी बॉडी थक जाती है कोई भी एक्शन रिपीटेडली करते हुए, then still we push ourselves to go further, to play more balls. That is endurance. If you stop at our limit,
then we can't improve our endurance. And how the endurance helps in our matches. Like when we play match, because we are playing best of 5 or best of 10 decider, and match is going head to head. That is a very tough match. So the decider game आता है. If we are not good at endurance or we are not good at our stamina, we will definitely lose our technique. और जब हम अपनी टेक्निक पे अच्छा नहीं होंगे तो हमारे लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल है. और एंड्योरेंस अगर हमारा अच्छा उस टाइम पे अगर डिसाइडर तक हमारी बॉडी टायर्ड है but still we can manage our technique or we can play very good at with our technique, then still we can win our match in a tight situation. So, and how we can practice endurance in multi-ball. Endurance is something like playing many balls continuously, which is very difficult with one ball practice. With one ball we can miss after 20, 30, 40 balls, but with multi-ball we can play 100 balls together. So which will help us to improve our endurance. And the same thing, endurance multi-ball में जब हम थक जाते हैं तो still balls आता रहता है तो हम उसको खेलने की try करते हैं. So that is very important to improve our endurance. So there is a video for foreign topspin endurance, and we are trading continuously balls to him, and he is playing 50% of the table foreign topspin. So in this video you will see him to get tired. Now he started to get tired. So now his hand speed is not too fast like when he started this basket. जिसका हाथ slow हो गया, but still he is playing. So this is the key for endurance. We need to practice endurance also in our multi-ball training. This will help in our matches, in tough matches. Okay. Now he's the last 10 seconds से थका हुआ, but still he is playing. He's trying to hit the ball. Now you can watch his hand speed. He's quick with hand and legs also. But after some ball, then जब वो थकना स्टार्ट होता है, जब उसकी घोड़े की जो कैपेबिलिटी स्टैमिना वो लिमिट तक आता है, देन वो सिर्फ मैनेज करना शुरू करता है. बॉल को सिर्फ स्लो खेलना शुरू कर देता है, हैंड स्पीड डाउन हो जाता है, लेग स्लो हो जाता है. और अब जब ये थकना शुरू होता है इसने टेबल से पीछे जाना शुरू कर दिया है ताकि इसको ज्यादा टाइम मिले रिएक्ट करने के लिए, बॉल को खेलने के लिए. स्टार्टिंग में टेबल के पास आके बहुत खेल रहा है. तो ये जरूर है. अगर मैच में ये चीज करेंगे हमारी टेक्निक difficult to win the match. But there should be a limit for endurance practice. तो अगर हम बहुत ज्यादा beyond limit जाएंगे, then वहाँ पर इफेक्ट उल्टा भी हो सकता है. तो हमें बेनिफिट किए अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे थकने के बाद तो हमारी टेक्निक पे असर आएगा. तो एक लिमिट कोच को पता होना चाहिए, प्लेयर को भी अपना पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट तक आगे जाने. अगर हम ज्यादा गए तो वी कैन लूज आवर टेक्निक, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. So we need to know, being a coach or being a player, where to stop. The next one is speed, agility, and reaction time. Speed and reaction time is the key for table tennis players to get better, because everyone knows table tennis बहुत fast game है. हमें बहुत quickly react करना पड़ता है. हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, हमें बॉल की स्पिन रीड करना है, हमें बॉल का स्पीड रीड करना है, हमें प्लेसमेंट रीड करना है, बॉल किस डायरेक्शन में आ रहा है, देन हमें उसकी जल्दी उसको रीड करके हमें अपना एक्शन भी कंप्लीट करना है. तो जो कि मल्टी बॉल से बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं ये तीनों चीजें. बिकॉज मल्टी बॉल अगर हम वन बॉल स्पीड से खेलेंगे तो बॉल बहुत जल्दी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गो फॉर 10 नंबर ऑफ वैल्यू. So with multi-ball we can go higher number. तो जब स्पीड से हम खेलते हैं वन बॉल से तो मुश्किल है हमें ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटिशन करना, जो कि मल्टी बॉल से हम कर पाते हैं. तो मल्टी बॉल से स्पीड, रिएक्शन टाइम एंड एजिलिटी. एयर स्पीड इज फॉर लेग्स, we need speed in our legs, but reaction time is like upper body, our hand reaction, how quickly we
react with your hand, how quickly we hit the ball. This is reaction time. Agility is something quickness, how quick we are with our physical ability. This is for physical ability, quickness. So here is a video for reaction also. I'm giving this boy full table a random ball anywhere with a high number of frequencies. He needs to decide what to play because he needs to play quickly. तो बट अगर हम ये प्रैक्टिस वन बॉल से करेंगे तो हम बहुत जल्दी बॉल मिस कर देंगे, जो कि मैच में भी होता है, क्योंकि मैच में हमें रिएक्ट जल्दी करना होता है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ रैली इतना लंबा नहीं होता. बट इन प्रैक्टिस वी कैन डू दिस टू गेट आवर प्ले बेटर विद आवर रिएक्शन टाइम. तो टेबल टेनिस पे जिस प्लेयर का रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, रिएक्शन क्विक होगा, वो जल्दी इंप्रूव कर सकता है, वो हायर लेवल पे पहुंच सकता है. So this is main is managing with hand. Reaction is with hand. Okay. So we can get better reaction with multiple early. So these are the benefits we can get by multiple training. Even we can get these benefits with one ball practice, but if we practice multi-ball, we can get these benefits quickly with less time because of the high number of repetition. It is not possible a very high number of repetition with one ball. So अगर हम वन बॉल से सिर्फ ये सारी चीजें अच्छा करने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम वहाँ टाइम ज्यादा लेंगे, बट हम मल्टी बॉल से करके देन हम वन बॉल प्रैक्टिस करेंगे तो हम जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं. So these are the importance and benefits of multiple training. And now there are some key points for players and coach also to focus on while doing multi-ball training. So first we will talk about points to keep in mind for players. Players को किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए जब वो मल्टीपल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो. So the main variation in table tennis is spin, speed and placement of the ball. प्लेयर को रीड करना चाहिए कि सामने से क्या स्पिन आ रहा है, किस स्पीड से बॉल आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है, कहाँ पे प्लेस हो रहा है. जब ये सारी चीजें प्लेयर रीड करने में कैपेबल होगा तब वो अपना स्ट्रोक चूज कर सकता है क्विकली कि कौन सा स्ट्रोक खेलना है, मैंने सामने वाले की टेबल पे कहाँ प्लेस करना है बॉल को. देन he or she can win point. So in multi ball why this is important, तो जब सामने से बॉल प्लेयर दे रहा है, तो कोई भी फीडर बॉल फीड कर रहा है डिफरेंट स्पिन के साथ, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट प्लेसमेंट के साथ, तो प्लेयर को रीड करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर वो रीड नहीं करेगा तो अपनी प्रॉपर टेक्निक के साथ बॉल को हिट नहीं कर पाएगा, तो अपने स्ट्रोक को बेटर नहीं कर पाएगा. क्योंकि अगर वो बॉल को रीड नहीं करेगा देन वो बहुत क्विकली बहुत जल्दी खेल सकता है बॉल को या फिर बहुत लेट भी खेल सकता है. बट रीडिंग दिस स्पिन, स्पीड एंड प्लेसमेंट he can hit the ball at the right time. So this is very important for players to focus on these things. और मल्टी बॉल में अगर बॉल मिस होता है तो फिर भी हमारी टेबल पे बॉल आता रहता है. तो बहुत सारे प्लेयर वो करते हैं कि वो सामने से बॉल मिस होने का डर नहीं होता तो अपने हाथ को कैसे भी घुमा देंगे. तो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू लर्न, बिकॉज अगर हम गलत चीज की भी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो हमारी टेक्निक गलत होगी. तो टेक्निक गलत होगा तो हम अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएंगे. तो जब हम इन चीजों को प्रॉपरली रीड कर पाएंगे देन वी कैन प्ले आवर टेक्निकल स्ट्रोक परफेक्टली और एफिशिएंटली. सो इन चीजों को रीड करना इम्पोर्टेंट है. सो इन दिस वीडियो आई एम गिविंग दिस बॉय 50% of current table with slow ball, fast ball, spin, no spin, high ball, quick ball, fast. So he needs to decide उसको ब्लॉक करना है, काउंटर करना है, टॉप स्पिन खेलना है या क्विक रिएक्ट करना है या बॉल का वेट करना है अगर बॉल स्लो आ रहा है. दिस इज अप टू हिम. और इतना वेरिएशन कंटिन्यूसली विद वन बॉल दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज किसी भी प्लेयर के लिए वन बॉल प्रैक्टिस में इतना वेरिएशन डालना काफी मुश्किल है. दिस इज द फेमस स्ट्रोक ऑफ टुडेस टेबल टेनिस, बैक एंड प्ले.
to see the serve. तो जब हम ये स्ट्रोक खेलते हैं मैच में रिसीविंग के टाइम, तो हम बॉल का स्पिन क्या आ रहा है, तो इसमें कौन सा स्पिन है, कितना लेंथ पे है, हमने इसको बैक एंड टॉक्सिंग खेलना है पीछे से, अगर छोटा बॉल तो फ्लिप खेलना आगे से, तो मैं उसको सारा वेरिएशन अभी दे रहा हूँ। मैं उसको बैक स्पिन बॉल भी दे रहा हूँ, साइड स्पिन बॉल भी दे रहा हूँ, शॉर्ट बॉल भी, लॉन्ग बॉल भी है। लाइक अभी लॉन्ग बॉल था, उसको पीछे निकल के खेलना है, तो वी नीड टू डिसाइड, वी नीड टू रीड द स्पिन स्पीड एंड प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, देन ही कैन डिसाइड। जो कि मैच में हो, आपको कभी भी दो बॉल सेम नहीं मिलने वाला है मैच में। आपको अगर स्पिन सेम मिलेगा तो स्पिन या स्पीड डिफरेंस मिलेगा, तो आपको ये हर बॉल पे ही रीड करना पड़ेगा। तो प्लेयर को जब भी प्रैक्टिस करता है मल्टी बॉल में, तो ये ना देखे कि मेरे बॉल सामने मिस नहीं हो रहा तो बॉल आ रहा है तो मैं कैसे भी खेल सकता हूँ, दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो ये अब ये लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल अगेन, शॉर्ट पुश, शॉर्ट बॉल आएगा तो हम शॉर्ट पुश कर सकते हैं, लॉन्ग पुश कर सकते हैं, हम फ्लिप कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, देन वी कैन प्ले दिस इन मैच। नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक। जो मैं अभी बात कर रहा था कि हम ये सारी स्पिन स्पीड या वेरिएशन जो भी सामने से आ रहा है, हम उसको रीड करेंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रोक खेलना है। तो जब तक हम ये स्पिन स्पीड प्लेसमेंट या कोई भी वेरिएशन नहीं रीड करेंगे, हम उसको रीड करने में कैपेबल नहीं है, देन वी आर नॉट कैपेबल टू सिलेक्ट आवर स्ट्रोक, देन वी आर नॉट कैपेबल टू सिलेक्ट आवर एक्शन, व्हाट टू डू। So the first thing is read properly the variation the opponent is giving to you. Then you can select choose your stroke. Then you can play the ball uh, properly. So you need to always keep in mind to read these variations. The next thing is repositioning and balance. Repositioning something like एक स्टॉक खेलने के बाद नेक्स्ट हमने अगर क्रॉस कोर्ट खेला या डाउन द लाइन खेला तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट पोजीशन कहाँ हमें चाहिए, तो वो रिपोजिशनिंग है। एंड बैलेंस इज टू कीप योर बॉडी बैलेंस। ये नहीं कि अगर आपने फॉरेन ऑप्शन खेला तो आप अपने फॉरेन साइड पे या राइटे के लिए अगर फॉरेन ऑप्शन खेला तो अपने राइट साइड पे आप जाके वहाँ पे डिसबैलेंस हो गए हैं, देन यू कांट कवर योर बैक एंड। सो यू नीड टू बैलेंस योर बॉडी so that you can play each and every ball properly. So repositioning and balance is very important. So we can the player practice करता है मल्टी बॉल ट्रेनिंग, तो उसको ये चीजें दिमाग में रखना है कि क्योंकि वो बॉल मिस करने का प्रेशर नहीं होता, तो अपनी पोजीशन को दोबारा रिपोजिशन करने या बॉडी को बैलेंस रखने में भी फोकस कई बार प्लेस नहीं करते, तो उनको इन चीजों पे फोकस रखना होता है। The next point is try to hit each and every ball on table. The third and fourth point connect with each other because अगर हम reposition and balance position में होंगे, then we can hit each and every ball on table. If you are doing multi-ball, it's not like कि अगर बॉल टेबल पे नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास नेक्स्ट बॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। Try to hit each and every ball on table. उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें हमारी प्रैक्टिस होती है डिफरेंट बॉल्स को डिफरेंट स्पोर्ट्स पे प्लेस कराने की। तो वो और जब हमारी बॉडी बैलेंस्ड है तभी हम ईच एंड एवरी बॉल टेबल पे रखने की ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस पोजीशन में नहीं है तो हम टेबल पे हिट नहीं कर सकते। सो व्हेन यू आर डूइंग मल्टी बॉल, ट्राई टू हिट ईच एंड एवरी बॉल ऑन टेबल। इफ स्टिल यू मिस, दैट्स फाइन, बट इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू हिट ईच एंड एवरी बॉल ऑन टेबल, देन इट्स नॉट गुड। So it's not like when जब हम वन बॉल प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम रैली करेंगे, नो, बट इट्स रैली इन मल्टी बॉल। अगर सामने से 100 बॉल आए तो हमने उसमें से कितना 70, 80, 60 या 90 या 100 आउट ऑफ 100 बॉल हमने टेबल पे डाला, टेबल पे प्लेस किया डिफरेंट स्पोर्ट्स पे, देन वी गेट कॉन्फिडेंस फॉर वन बॉल प्रैक्टिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू कीप ईच एंड एवरी बॉल ऑन टेबल। So these are the important points for players keep in their mind while they practice multi-ball training. And the next one is points to keep in mind for coach. Because it's not like always
the player who needs to focus, but वो कोच के लिए भी है कि वो इक्वली फोकस्ड रहे ट्रेनिंग सेशन में। अगर जितना प्लेयर का फोकस है उतना उससे कहीं ज्यादा कोच को फोकस चाहिए प्लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए। तो कोच इज द वन टू गाइड द प्लेयर। प्लेयर को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जब कोच मल्टीबॉल फीड करता है तो उसको भी वेरिएशन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो वेरिएशन पे फोकस नहीं करेगा, एक ही जैसा बॉल फीड कराता रहेगा, तो प्लेयर को डिफरेंट जो वेरिएशन उसको रीड करने की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। और मैच में कभी भी एक जैसा बॉल कंटिन्यूसली नहीं आता है। तो इसलिए प्लेयर कोच को फोकस करना चाहिए कि वो डिफरेंट वेरिएशन के साथ प्लेयर को बॉल फीड करा रहा है, ताकि वो उसका मैक्सिमम मल्टीपल ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोच to vary the ball with respect to speed, spin, and placement, or we can say sometimes height ball. So this is the it's like multi-ball is a very intense training. So when the multi-ball करते हैं तो player gets tired very quickly because of the high number of repetition. तो उस टाइम प्लेयर कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कि वो प्लेयर को पुश करे, मोटिवेट करे अपना बेस्ट देने के लिए उस ट्रेनिंग सेशन में। क्योंकि अगर प्लेयर थक जाएगा तो स्पेशली यंग प्लेयर, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अगर थक जाएंगे तो वो नहीं एफर्ट करेंगे। बट देन द जॉब ऑफ कोच टू टॉक इन ए पॉजिटिव मैनर एंड मोटिवेट द प्लेयर टू पुश हिज और हर लिमिट फॉर दैट ट्रेनिंग सेशन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट ट्रेनिंग सेशन। तो कोच को हमेशा जब मल्टीबॉल करा रहे, इवन वाइल फीडिंग द बॉल को फीड करते करते जब सामने दिख रहा है कि प्लेयर थक रहा है, वो स्लो हो रहा है, उस टाइम मोटिवेट करना चाहिए उस प्लेयर को। यू कैन स्टिल गो फॉर नेक्स्ट 10 balls, नेक्स्ट 5 balls और नेक्स्ट 15 balls. So give that player target. If you give target with next 10 balls, then it's clear player's mind, I need to hit 10 balls. But if you say let's play more, I can say if you go with specific number to motivate the young players, then it's better, because I do so. So player count 10 balls and player stop only 11 balls. Sir, you said 10, so do like that and keep the motive of the training in mind. जब हम मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं तो हम टेबल टेनिस का हर एक एस्पेक्ट जो है या हर एक टाइप की जो ट्रेनिंग है हम उसको मल्टीपल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक सर्विस प्रैक्टिस, सर्विस रिसीविंग प्रैक्टिस, any technical stroke or tactical training or some specific sequence or stroke for a player which he or she needs in a match. So जब ये मल्टीपल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मोटिव हमारे प्लेयर के माइंड में भी और कोच के माइंड में भी each other a lot, because multiple training is like one-on-one session. तो वो उस टाइम प्लेयर और जो कोच है वो एक दूसरे से काफी बात कर सकते हैं, काफी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट देयर टेक्निक्स और अबाउट देयर गेम स्टाइल, व्हिच इज नॉट इन ए वन बॉल प्रैक्टिस, इन ए ग्रुप सेशन. तो जब मल्टीपल कर रहे तो ट्रेनिंग का मोटिव जो डिस्कस करके कोच को भी प्लेयर को बताना चाहिए कि जहाँ आप अगर ये ड्रिल्स कर रहे हैं या ये सीक्वेंस कर रहे हैं तो इसका हमारा मोटिव ये है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस. तो तब प्लेयर ज्यादा फोकस कर सकता है उसके ऊपर. It's easy for him or her to focus properly on that thing, which is the motive of that multiple training. So वो mind में दोनों के clear होना चाहिए. The next one is be cautious about proper technique. It's like जैसे मैं भी बोल रहा था कि जब हम high number of repetition करते हैं तो हमारी muscle memory develop होता है, तो हम quickly improve करते हैं अपनी techniques को. So this is the responsibility of coach at the initial stage when the player is learning any technique to focus that he or she is doing in a proper way. Because अगर हम कोई भी टेक्निक हम गलत तरीके से भी प्रैक्टिस कर लेंगे मल्टीपल विद हाई नंबर ऑफ रिपीटिशन, देन इट्स वेरी बैड. तो हम गलत प्रैक्टिस करेंगे मींस वी आर गेटिंग ए बैड मसल मेमोरी और रॉन्ग मसल मेमोरी. सो वी कैन नॉट गेट बेटर विदाउट टेक्निक. हम लोगों को टेक्निक खराब करके हम खराब एक्शन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो खराब एक्शन के साथ इनिशियली स्टेज पे हम कभी मैच जीत सकते हैं, बट हम सीनियर कैटेगरी में जाके इट्स वेरी डिफिकल्ट विद बैड टेक्निक टू विन अ गुड मैच. तो
इनिशियल स्टेज से ही अगर मल्टीबॉल ट्रेनिंग में कोच, क्योंकि मल्टीबॉल ट्रेनिंग जब ट्रेन कराता है कोच, तो सारा फोकस प्लेयर के ऊपर होता है कोच, सो इट्स इजी टू ऑब्जर्व एवरी टेक्निकल पार्ट। तो वो स्टार्टिंग से ही फोकस होना चाहिए कि प्लेयर प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन, कोच शुड बी अवेयर ऑफ फिजिकल कंडीशन और फिजिकल फिटनेस ऑफ द प्लेयर, बिकॉज मल्टीबॉल इंटेंस ट्रेनिंग है तो प्लेयर जल्दी थकता है, जल्दी टायर्ड होता है। तो कोच को पता होना चाहिए कि किस प्लेयर का फिटनेस लेवल क्या है, कितना है, वो कितना प्रैक्टिस कर सकता है मल्टीबॉल में, कितना नंबर ऑफ रिपीटिशन कंटिन्यू कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको उतना नंबर ऑफ बॉल्स फीड कराना चाहिए। बिकॉज अगर इफ यू गोइंग टू बियॉन्ड ऑफ योर लिमिट, लाइक आई से एंड्योरेंस, you need endurance, but if you are going too beyond of your limit, so then there are chances to get injury. So it's better to know the coach, or even for players to know the physical condition to avoid injury. Because multiple में अगर हम बहुत ज़्यादा रिपीटिशन कराएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ या बहुत बहुत लंबा 2 से 3 घंटे का मल्टीपल सेशन ही कराते हैं, then there are high chance that play कोच को पता होना चाहिए। So these are the points to focus. Coach need to focus while doing multiple training with players. And the next one is, and the last slide of my presentation, some key points of multiple training. Like here, and so multiple training हमें कितना करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। So I would say for that any player, we should go for 30 to 40% of total training. I would say weekly training. हम वीक में कितने सेशन खेल रहे हैं, कितना सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने घंटे के सेशन होते हैं, कितना लंबा सेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सेशन 30 to 40% ऑफ ट्रेनिंग शुड बी मल्टी बॉल। So we can plan, like if you are playing 11 sessions per week, how many sessions we need multi-ball, how many sessions we need match training, how many sessions we need one ball practice, how many sessions we need service practice sessions. So we should do 30 to 40% of training multi-ball. And next one, multi-ball should be realistic. This is a very important point for multi-ball training, because realistic means like match situation. हमारे पास मैच में कैसे बॉल आता है, या हम वन बॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बॉल कैसे ट्रैवल करता है, किस ट्रेजेक्टरी पे करता है, किस स्पीड से करता है, किस रिदम में बॉल ट्रैवल करता है, तो वो मल्टी बॉल में हमें मेंटेन करना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक मैच में बहुत स्लो बॉल आ रहा है, हम प्रैक्टिस में बहुत फास्ट दे रहे हैं, मैच में फास्ट है, प्रैक्टिस में बहुत स्लो दे रहे हैं, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस मल्टी बॉल ट्रेनिंग। So I can show you a video of this. Like now I'm feeding this boy very slow, so he's waiting a lot for the next ball, and this is not going to happen in a match. So we should not do this like this way, but this can show, like if I'm giving him very slow, there is a very less number of frequency, he is able to play maximum number of balls on table, but in match he is not going to get like this. तो मैच में ऐसा नहीं होने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन इज इट्स टू फास्ट फॉर हिम, आई वुड से फॉर हिज लेवल। तो उसके मैच में भी इतना फास्ट फास्ट बॉल नहीं मिलने वाला है रैली के लिए, तो हमें वो भी नहीं होना चाहिए कि हम इतना फास्ट फास्ट उसको बॉल फीड करा रहे हैं कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे, उसके बाद टाइम ही नहीं है रिएक्ट करने का। तो एंड दिस इज माई कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ रैकेट एंड बॉल इज वेरी हाई फ्रॉम द नेट। सो इन मैच this is not going to happen कि मैं इसको इतना ऊपर से हिट करेगा। It's mostly like near the level of table or level of net, but उससे बहुत ऊपर या टेबल लेवल से बहुत नीचे तो वो नहीं होने वाला है मैच में। This is too slow. Our player is getting happy or he is not getting tired, but this is not going to help him. इसलिए मैच सिचुएशन नहीं है, मैच में से बॉल नहीं आता है। Even now he can get tired, but he is also smiling because ऐसा बॉल नहीं आता, उसको भी पता है। This is a new thing for him. तो हमें ये रिदम सारा हमें माइंड में रखना चाहिए कि बॉल की ट्रेजेक्टरी कैसे रहती है, बॉल की स्पीड क्या है, बॉल की लेंथ कैसे है, बॉल मिशन कैसे, तो सारी चीजें माइंड में रखते हुए मैच में कैसे होता है हमें देन मल्टी बॉल कराना चाहिए। नेक्स्ट वन इज
repositioning and balance. Be capable to feed from different spots of table. इसी लाइक जब जो भी फीड करा रहे चाहे वो प्लेयर है चाहे कोच है तो उसको टेबल के डिफरेंट शॉर्ट लेंथ से लॉन्ग लेंथ से या अवे फ्रॉम द टेबल उसको बॉल फीड कराना आना चाहिए विद डिफरेंट स्ट्रोक बिकॉज मैच में ये सारी सिचुएशन आती हैं आई कैन शो यू वीडियो फॉर दिस like this is practice for short push they usually say drop shot so to feed or to you practice with drop shots, coach should be capable to play near the table and feed short ball. Or the play need play practice, then this is the same to feed the ball. Next thing is giving long push. We can give long push from near the net also, but and from the end of the table also. Coach should be capable कि वो हर साइड से मल्टीपल करा सकता है हर एंगल से लाइक शॉर्ट बॉल पे फ्लिप आता है तो ये एक वे है प्रैक्टिस कराने का कि अगेंस्ट द फ्लिप हाउ टू मैनेज then this is foreign play this is the practice for counter topspin playing topspin against topspin because we need to play topspin from the end of the table because मैच में कभी भी नहीं होता है कि टेबल के ऊपर से टॉपस्पिन आएगा and this is practice from away from the table topspin against topspin तो कोच को या कोई भी फीडर है अगर प्लेयर की बॉल फीड करा तो उसको कैपेबल होना चाहिए बॉल फीड कराने के लिए तो away from the table near the table short length end of from the end of the this is practice तो अगर किसी चौपर से मैच होता है जैसे डिफेंस इन इंडिया तो ये चौक प्लेयर को अगर कोच को ये आता है तो अपने प्लेयर को अगर एकेडमी को चौपर नहीं है तो वो चौपर के अगेंस्ट कैसे ट्रेन करेगा अपने प्लेयर को तो वो भी प्रैक्टिस करा सकता है विद मल्टी बॉल बिकॉज चौपर काफी कम है इंडिया में स्पेशली बट वी हैव 4 चौपर इन आवर एकेडमी तो हर एकेडमी में चौपर नहीं है तो कोच उसको प्रैक्टिस करा सकता है कि चौक के साथ अगेंस्ट कैसे दिस इज प्लेइंग बैक एंड टॉपस्पिन or we can say back and roll against so very slow topspin. The player coach should be capable of feeding multi-ball with forehand or backhand near the table, away from the table. So the next point is you can practice every aspect of table tennis with multi-ball. Like अभी मैंने जो वीडियो दिखाया है टॉपिंग की भी हम प्रैक्टिस तो प्लेइंग अगेंस्ट टॉप तो प्रैक्टिस करा सकते हैं प्लेइंग टॉप अगेंस्ट टॉप प्लेइंग शॉर्ट पुश प्लेइंग अगेंस्ट फ्लिप everything we can practice with multi ball every stroke we can practice with multi ball so this is the next point and players should also learn to create multi ball because in India we have a very less number of coaches in table tennis so अगर प्लेयर डिपेंडेंट रहता है कि कोच ही मुझे मल्टी बॉल कराएगा तो जो मैंने अभी बात करी वी शुड प्रैक्टिस 30 to 40% ऑफ आवर ट्रेनिंग मल्टी बॉल ट्रेनिंग so this is not going to happen if we dependent on our coach because in every academy there are not a lot of number of coaches to give that number of multi ball 30 to 40% of training so अगर कोचेज अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं मल्टीपल फीड कराने के लिए तो दे कैन मैनेज विद लेस नंबर ऑफ कोचेज तो अगर प्लेयर आपस में मल्टीपल फीड कराना जानते हैं तो वो आपस में मल्टीपल फीड करा के प्लेयर कोच कैन गिव इंस्ट्रक्शन यू नीड टू डू दिस और समटाइम प्लेयर कैन डिसाइड आई नीड टू प्रैक्टिस दिस सो आई नीड टू फीड मी लाइक दिस so this is the important thing so player can do multi-ball and feed multi-ball so I do in my academy players feed multi-ball to each other so but it's nearly difficult to feed multi-ball 30 to 40% of training with coach if we have a less number of coach and high number of students so that was sir that was all from my side on multi-ball training and thanks to Sports Authority of India, Khelo India and Table Tennis Federation of India for this great initiative for young players who are not getting practice
in this lockdown times of corona pandemic. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उनको इंडिया के डिफरेंट कोचेस से, अलग अलग स्टेट के कोचेस से जो आधा की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं प्लेयर्स, तो वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। उनके नॉलेज कोचेस अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, क्योंकि वो भी ट्रैवल करके हर जगह जाके ट्रेन नहीं कर सकते। तो दिस इज a very good initiative for the unity of table tennis fraternity, or you can say it's unity of coaches and players. So we need this in India if we want to do very good in table tennis. So this is sir. Thank you. Thank you, Mr. Vikas. It was indeed a very good session of today. Thank you, sir. I just request Vishnu to kindly unmute Suman ma'am. विष्णु जी क्या सुमन मैम को अनम्यूट करें। वॉइस इको हो रही है जबरदस्त। Today actually the weather in this part is very stormy, heavy clouds are there, rain is coming. तो हो सकता है इस कारण से नेटवर्क को आज दिल्ली हरियाणा में भी आज मॉर्निंग बारिश हुआ है। Yeah, is Rajasthan में तो still it is raining like anything. Okay. That may be causing the dipping of. So maybe there is network problem because of that. विकास जी के सेशन में एक टॉपिक था जिसमें कहा था पुश एंड मोटिवेट प्लेयर। मैं रिक्वेस्ट सुमन मैम टू काइंडली थ्रो लिटिल लाइट ऑन दिस। विश्वजीत जी कैन यू अनम्यूट सुमन मैम? सुमन मैम का माइक्रोफोन म्यूटेड दिखा रहा है। स्क्रीन पे भी म्यूटेड है मैम। यू हैव टू अनम्यूट। Yes, can you hear me? Yes, Yes, ma'am, we can hear you. Hello? Hello, ma'am, we can hear you. मैम Atul, I can't hear. आपकी आवाज इको होकर के आ रही है मैम हमारे पास तो। हेलो। इको हो रहा है। Hello? आपकी आवाज आ रही है मैम? आप तक बट मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इको हो रहा है मैम, वादियों से टकरा के आ रही है। I can't hear. Ma'am is in hilly area. Okay. Anyway, it was a good lesson. Thank you, ma'am. एक कंटेंट पे आज काफी देर तक चर्चा की गई थी, दैट वाज मसल मेमोरी। So just wants to update all the kids also and those who may had heard this word first time, muscle memory. To be very frankly, this is only a terminology. This is only you can say this is a sort of nomenclature, because in our human body the mechanism of memorization is given to brain only. Muscle is not having any mechanism to remember, to memorize anything. But there are three things. अगर आप लोग कभी नोटिस किए हो तो जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं या कभी किसी कारणवश कोई व्यक्ति सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, तो कभी पैर में गुदगुदी की जाती है या ऐसा कुछ किया जाता है, तो ही कम्स आउट फ्रॉम द सबकॉन्शियस स्टेट आल्सो. And even in the sports psychology, it has been told that the behavior of any individual in the state of consciousness, subconsciousness and even unconsciousness, that is sports psychology या psychology इसको कहा जाए. तो जो behavior होता है individual का, वो conscious, subconscious और unconscious तीनों states में होता है. So when we are constantly performing any activity, that time what happens, that activity का memorization हमारे subconscious स्टेट में भी हो जाता है. तो जब हमारे सबकॉन्शियस स्टेट के द्वारा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होती है और हमारा फुली कॉन्शियस कहीं और भी डाइवर्टेड होता है, इवन देन वी यूज्ड टू डू दोज ऑल थिंग्स परफेक्टली, दैट इज नोन एज मसल मेमोरी. तो इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कह सकते हैं कि मसल मेमोरी का मतलब मसल के अंदर कोई मेमोरी है, पर जैसा कि विकास सर ने बताया कि जब रेगुलर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिसिंग जो होती है आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है. You get feeling. That feel, जिसको फील कहा जाता है.
और फिर इसी के अंदर एक एडवांस वर्जन और होता है जो कि काफी सारे कोचेस जानते भी हैं, सिखाते भी हैं, जिसको कहा जाता है काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक मींस द सेंस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के द्वारा भी कई ऐसे सेंसेस हमारे हाँ, डेवलप बिल्कुल। होते हैं जिसको कि हम मसल मेमोरी के हेलो। साथ रिलेट कर सकते हैं। हाँ, देख रही हूँ। मैम आवाज आ रही है? बताओ। नहीं आई मैम तक अभी आवाज नहीं। आ जाओ। चलिए, तो एक टर्मिनोलॉजी और मसल मेमोरी में काम आती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अच्छा। Maybe we had already talked a lot in our previous sessions, and push and motivation of players मैं मैम से जानना चाह रहा था। इंग्लिश तो मीडियम हो गया। पुश एंड मोटिव का मतलब ये हो गया बताओ। कि कोई भी प्लेयर हु मे बी, मैम आपका को अनम्यूट करना पड़ेगा, सत्य, खाली मेरी आवाज मेरी वो स्पीकर उधर जा रहा है। अच्छा, हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है आपकी। ला दीजिए। सो आज काफी ज्यादा टेक्निकल वो रहा है। इवन देन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू विकास जी, क्योंकि जितने भी नए बिगिनर प्लेयर हैं उनको he has told about the importance of the multi ball and various things he has taught us regarding 9 बजे वापस आ जाओ। 9 बजे आ जाओ वापस। multi ball effects and the merit of the multi. Tomorrow again we will be resuming the session at 5:15 और 5:15 बजे हम लोग कल फिर से जुड़ेंगे और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे डिलीवर होने वाला है। मिस्टर प्रमोद गंगराडे फ्रॉम एमपी इंदौर, जो कि हमारे पैरा इवेंट को भी काफी ज्यादा वो सुपरवाइज करते हैं। ही वेरी गुड, इज अ वेरी गुड प्लेयर रादर आई कैन से। He will be delivering a session, some loud voice is coming. So tomorrow he will be delivering the session on some regulations and laws of para events. So please log in at 5:15 tomorrow again from the platform of Table Tennis Federation of India and Sports Authority of India. We are thankful to the speaker of today, Mr. Vikas Rathi. And with this note, I am signing off from now. And tomorrow again at 5:15, we will be resuming the session. Till then, good day.